कर्नाटका गुलबर्गा जिले के सेडम तालुके में आज दलित सेना और महिला सुरक्षा समिति के जानिब से तमाम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज का मकसद ये है कि किस तरह से माइक्रो फाइनेंस वाले ख़वातीन का इस्तेसाल कर रहे हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, गलत कामों के लिए उकसाया जा रहा है और उनके साथ बदकलामी की जा रही है। तमाम मामलात को लेकर मुकामी और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि माइक्रो फाइनेंस वालों पर हुकूमत एक्शन लेकर गरीब ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ फरमाए। माइक्रो फाइनेंस वालों पर इल्ज़ाम है कि वो लोग जानबूझकर एक औरत को 5-6 लोन देते हैं और बाद में उन्हें हरासमेंट करते हैं। इस एहतजाज को लेकर सिराज शाब्दी, वसीम शेख, अफजल महमूद और दलित सेना के मोहम्मद अशरफ ने मीडिया के नुमाइंदों के सामने अपने तासुरात पेश किए। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। मुर्दाबाद मुर्दाबाद संजय दलाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद का जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। रिकवरी एजेंट का जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। नारी पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नारी पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। माइक्रो फाइनेंस का जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। माइक्रो फाइनेंस का जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। एजेंट की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिकवरी की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माइक्रो फाइनेंस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माइक्रो फाइनेंस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो। माइक्रो फाइनेंस बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वजह क्या है और आप लोगों को किस तरह से इससे लड़ना है, पूरा बता दोगे आराम से तो बेहतर है। आपके जो आधार कार्ड बैंक ब्लॉक होंगे, आईडी कार्ड ब्लॉक होंगे बोले, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसके वेरिफिकेशन के लिए हम आधार सेंटर को भी बात कर रहे थे।
आधा मेरे बात पहले मेमोरेंडम में देने के बाद में वो उनके ऊपर भी कंप्लेन हो सकती है। अगर जूनियर पुलिस ऑफिसर यानी कि जो है हवालदार कंप्लेंट नहीं ले रहा है तो सर्कल के चलो बोलती कैसा जाना बोलो मेमोरेंडम लो ಮುಂಜಾನೆ ಬಾ ಚಂದ್ರಿ ಸರ್ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಬಿ ನಾ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹತ್ರ ಅದು ಸರ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಡಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ಅದನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ನಮಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ದಿನ ಮನೇಲಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಮನಿದೊಳಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೈಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ 6-7 ಭಾರ ತನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತನ ಕಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತನ ಕಟ್ಟಾರ ನಮಗಂತೂ ಮಳೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಾಕ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಲಿಂದಂತೂ ಯಾವ ಸಂಘನು ನಮಗ್ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲ್ಲ ನಮಗ್ ಕಟ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರೊಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಾನ್ಶನ್ ನೋಟ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿದು ರೊಕ್ಕ ವಸ್ತು ದಾರ ದಿಕ್ಕು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದ ಈ ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂತೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಲ್ಲಕತ್ತೀನಿ ಕಳಕಳಿಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಲ್ಲಕತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಯಾಕೆ ತಿರುಗ್ತಾರ ಊರಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೈಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಾರ ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಮ್ದು ಗಡಿಕೇಶ್ವರಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 10-11 ತನಕ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಾಲ ಅಂತೂ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಕೇಳಲಕ್ಕ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ತಿರುಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿದವರು ತನ್ನ ಮರಿ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಊರೊಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡದಾರ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾರೆ ನಡಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡು ನಡಿ ನಮ್ ಕೊಡು ನಡಿ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾವಲ್ಲತ್ತಾರೆ ಎಲೆ ಆಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಕುಡಿಲತ್ತಾರೆ ತಿಲ್ಲತ್ತಾರೆ ನಮಗ್ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೂರು ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಬಾರಂದ್ರೆ ಗಂಡದಾರ ವಾರಗಡ್ದು ಹೋಗ್ಲಕತ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮ ನಿನಗ್ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನೀನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದ ನೀ ಮೊದಲು ಕೊಡು ನಾವ್ ಎದ್ದೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಅದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೊಕ್ಕ ನಾವು ಇಲ್ದ್ರ ಕೂಡ್ರಿ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಆದಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೋನ್ 2 ಲೋನ್ ಬಾರ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕಟ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ 4 ಜೀವ ಬಚಾಸ್ಕೊಂಡಿನಿ ರೊಕ್ಕ ಒಯ್ದೋದು ಕಟ್ಟಿ 4 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 4 ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಂಡಿ ನಾ ಏನ್ ಲೋನಿನ ಕೆಲ್ಲ ಜೀವ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಮಾಫಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದ್ರು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಹೋರಾಟ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಹಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾದೇವಿ ನಮ್ಮೂರು ಗಡಿಕೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮೂರ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂಧಿ ತಿರುಗಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೋಕಸ್ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೈನತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪರ್ಜ ನಂಬರ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ಮಂದಿಗೆ ನೆರ್ಸಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಸ ಮಂದಿ ಸಾಯಕ್ ರೆಡಿ ಮೊದಲು ಆಜು ಬಾಜು ಸಂಘದವ್ರ ಭಾಳ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ ರೀ ನಮ್ಮ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಏನು ನಾವು ಕಟ್ಲಕತ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ ರೀ ಆ ಸೋರ್ಗಳವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಂದ್ರಲಕತ್ತಾರ ರೀ ಸೋರ್ ಹಂಗೆ
ಕುಂತ್ಕೇಸಿ ಕಟ್ಟೇಬೇಕಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕಟ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕೇಸಿ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಚರ್ ಭಾಳ ಮಾಡತ್ತಾರ ರೀ ಹಂಗಾಕೇಸಿ ನಾವು ಜನ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಂತು ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬಂದಾರ್ರಿ ಕುಂತಾರ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ ಈಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತು 15 ದಿನ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ತೆ ದೇವ್ರಿ ಚುಂಚೋಳ ರೋಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀ ನಮ್ಮ ಹೆಸ್ರು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ರೀ ಅದಕ್ಕೂ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಕಿನ್ನ ಅವರೇ ಟಾರ್ಚರ್ ಜಗ್ಗಿ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ ರೀ ಅದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಫಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಜರ ನಾವು ಕಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ತೀವ್ರಿ ಸರ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೀ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಾತ್ತಾರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಲ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕುಂತು ಬಿಡತ್ತಾರ ರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಂದ್ರಲಾಕತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಫಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಂದ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಶ್ರೀ, ನಾವು ಮಳೆಕಳ್ಳಿಂದ ಬಂದೀವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಬಲ್ ರಾತ್ರಿ 10 ಆದ್ರೆ ಭೀ ಸರ್ಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕೂಡ್ಲತ್ತಾರ ಈ ಥರ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಬಂದು ಕೂಡ್ಲತ್ತಾರ. ಭಾಳ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತೀರಿ ನಮಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಲಾಗ್ರಿ. ಇವತ್ತಿಲ್ರಿ ನಾಳೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೀ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು 10 ಆದ್ರೆ ಭೀ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೆಳಗನ್ನ ಅಂತ ಗೀಸನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಸ್ಕೊಳತ್ತಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೀ. ಸತ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಘದವ್ರಿ ಹಂಗೆ ರೀ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಗುಂಪದು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಲೀಡ್ರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೇಸಿ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ರು ದೂರ್ಲಿಂದ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದ್ಗೇಸಿ. ನಾವು 5 ಸಂಘ ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ 5 ಸಂಘ ಹಂಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಆದ್ರಿ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ. ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬುದು ನಾವೇ ಇದಿಲ್ಲಲ್ರಿ ಸಂಘದ ಲೀಡ್ರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಲೀಡ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಗೇಸಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಾಗ್ಯದ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಗೇಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಂತಾರಿ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಗಳ ಹಚ್ಚೋದು ಅವ್ರ ಕಡೆಕಾಗಿ ನಿಂದ್ರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಗೇಸಿ. संगदाग 15 मंदी दिवरी ना अष्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज सेडम में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है जो मज़लूम औरतों के लिए, जो उनकी तकलीफ़ें यहाँ पे आके जो सुनने को मिला है, नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ है। जो औरतों को जो है ना हरासमेंट किया जा रहा है, ये जो है संघों की जो मनमानी यहाँ पे चली हुई है, यहाँ पे जो संघों का जो गुंडा राज चला हुआ है, ये संघों के सरों को जो है ना खुले अल्फाज में मैं वार्निंग देना चाहता हूँ। कानून तुम्हारे बाप की जागीरी नहीं है, कोई तुम्हारा जो है ना जुल्म बर्दाश्त करने वाला नहीं है। या आप अगर देना सीखे हैं तो आप भी फ्रॉड काम कर रहे हैं, क्योंकि एक लेडीज़ को 4-4 लोन 6-6 लोन क्या वजह से देती? ये सब तुम्हारा ही स्कैम है कि हमारी औरतों को जो है ना, हमारे हिंदू बहनों को, हमारे मुसलमान बहनों को ये फंसाने की सब में बड़ी साजिश की जा रही है। उनको गाड़ियों पे बिठाया के लेके जा रहा है और उनको जो है ना इलाजों में लेके जा रहा है। ये सरासर गलत है। तुम्हारे भी घर में जो है ना माँ बहन है, आप अपना काम आप अपने राइट्स से करो। तुम्हारे राइट्स जो हैं ना किसी के घर में बैठना है तुमको, ना ही किसी के जो है ना हरासमेंट करना है, ना किसी को गाली गलौज से बात करना है। आज तुम ये कभी मत समझना कि तुमको पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे पूरे सेडम की अवाम अब जाग गई है। इंशाअल्लाह अगर आप किसी गंदे अल्फाज का अगर यूज़ करेंगे तो आपको ऑन द स्पॉट उसका जवाब मिलेगा। यहाँ के सेडम के पुलिस डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ, ये औरतों का जो भी आपकी तरफ से जो है ना संघ की जो कंप्लेंट लेकर आएंगी, ये जो सूद ब्याज बड्डी, ये चक्कर बड्डी, इसके ऊपर अगर आपके पास अगर कंप्लेंट आएंगी तो आप फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा। कुछ भी बड़ा हादसा अगर यहाँ से होगा तो यहाँ पे जो है ना सेडम से पुलिस डिपार्टमेंट और यहाँ के जो है ना ज़िम्मेदार है ना, इसके जो है ना सजा, ये जो क्राइम है, ये क्राइम में इंशाल्लाह वो लोग भी शामिल हो जाएंगे। फिर इस तरह से संघ के खिलाफ गुलबर्गा से मुहिम छेड़े आप और आपकी टीम ने जी सेडम तक पहुंची है जी। अगर इसी तरह से अगर कहीं महिलाओं को अत्याचार हो रहा है जी संघ की तरफ से जी। तो आप कर्नाटक के हर कोने में पहुंचेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हर अभी हुमनाबाद, बसव कल्याण, बीदर, जवर्गी, शाहपुर, शिरपुर, हत्तीगुड़, यादगीर और लैचूर, ये सब जगह हमारी बात चल रही है। ऑलमोस्ट हर जगह औरतों को तकलीफ़ है और ऐसी वैसी तकलीफ़ नहीं है, बहुत है। एक एक घर में हमने जाके विज़िट किया है, एक यूज़न तो गिलास तक नहीं छोड़े ये बड्डी खोर लोग, क्योंकि हमारे आदमी लोग जो है ना हमारे औरतों का सपोर्ट नहीं कर रहे। जब एक आदमी अगर अपनी औरत का सपोर्ट करेंगे तो औरत बाहर क्यों आएंगी? हाँ, हमारे आदमियों को भी पहले शर्म आनी चाहिए कि हम अपने औरत को जो है ना आगे कर रहे हैं। संघ का आदमी अगर आया तो उसको पूछने की हिम्मत हमारे आदमी में नहीं है। हमारा अगर आदमी पूछता है ये मेरे घर में इतनी देर तक इनका करते, उसकी क्या मजाल है बैठने की? मैं सभी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे मामलों में ना पड़े। कार्ड को लेकर, राशन कार्ड को लेकर महिलाओं को संघ में डराया जाता है जी। अगर आप पैसा जो है ना नहीं भरते जी तो आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड ब्लॉक किया जाएगा। सब में पहली बात तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है बंद करना, चालू करना।
इनकी इतनी औकात भी नहीं है कि एक छोटा सिम बनकर आए। आधार कार्ड राशन कार्ड तो बहुत दूर की बात है, ये एक सब फेक है। इन्हों एक स्ट्रैटेजी बनाए हुए हैं, क्योंकि इन्हों पूरी मीटिंग कर रहे हैं कि ये मीटिंग इसलिए हुई कि आप हम वसूली नहीं कर सकते, औरतों को लड़ाया जाएगा। एक संघ की लीडर को ही उन्होंने जो है ना थोड़े से पैसे देकर आप तुम ही जो है ना हमारे वसूल कर सकते, आगे तुम्हारे को जो है ना हम बेनिफिट कराते, तुम्हारे को जो है ना बंद मुट्ठी से क्या देना देते उनको। या हमारे ही लीडरों को जो है ना इन्हें आगे कर इस तरीके का जो है ना ये अपनी रिकवरी को जो है ना अंजाम दे रहे। मगर मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो भी अगर मुस्तैद है, जो नहीं भरना चाहते, साफ सीधा बोल दे कि हम नहीं भरना चाहते, वो आप लीगल नोटिस भेजो, क्या करना है आपकी कोर्ट की कार्रवाई करो, उन्होंने भी जो है ना कोर्ट से जो है ना फाइट करेंगे। अगर इनके ऊपर कोई ज़्यादती होंगी तो इंशाअल्लाह उसका जवाब ऑन द स्पॉट 10 मिनट के अंदर दिया जाएगा। सप्रेम जय भीम जय ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್। ಇಂದು ಇವತ್ತು ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸೇನೆ ತಾಲೂಕಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ನಮ್ಮ AC ಆಫೀಸ್ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಏ ವಿಷಯಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಭಾಳ ಅವರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಕೆಲವು ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರವ್ರ ಮೇಲೆ 8 10 ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಲತ್ತಿದೆ। ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಜನರಿಗೆ। ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದವಾಖಾನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆಲಿಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲರ್ಲಿಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋರು ಇವತ್ತು ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ತುಂಬುತ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರೆ ನಾವು ವಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತುಂಬುತ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಟೈಮ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು। ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮನೆ ತಾನು ಹೋಗಿ ಜಗಳಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ। ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡ್ರ್ ಇಡಬ್ಲಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಕುಂದಿರಿಸಿ ನಾವು ಏನಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ, ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಲ್ಲೇನೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ಸಿರಿ, ಒಬ್ರವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಮಾಡಿಕೇಸಿ ನೀವು 5 ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10 ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಸರ್। ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ 1 ಇಲ್ಲ 2 ಇದ್ದರೆ 1,000 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬೋದು, ಒಮ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲತ್ತಾರ। ಮತ್ತು ಇದು ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ದವರು। ಇವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ತನಕ ಬಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಂದಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಭಾಳ ತಪ್ಪದ। ಅದು ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಂದಿರೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದು ಭಾಳ ತಪ್ಪದ। ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೀವು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲತ್ರಿ, ಗಂಡ್ಸು ಮಕ್ಕಳೇನು ಬಂದು ತಿರುಗಾಡತ್ತಾರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ। ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಂದು ಹಚ್ಬೇಕತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಗಂಡ್ಸು ಮಕ್ಳು ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚಿರಿ? ಗಂಡ್ಸು ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾತಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ನೋವಾದ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಘ ತೊಗೊಂದೇವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ। ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡತ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ ರೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕದಾಗ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕದಾಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ನಗರದ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗೊಂದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು। ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಮು ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತದ, ಆದರೆ ಅದು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ಸರ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಓಕೆ ನೋಡಿದೆವು, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಥರ ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ದು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಯದ, ನಾಳೆ ಕಟ್ತೀವಿ ನಾಡ್ದು ಕಟ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಆಗ್ಯಾರ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಓಡ್ದಾರ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇವ್ರು MLC ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ 3 ದಿನ ಆಗ್ಯದ ಸರ್, MLC ತೊಗೊಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕುಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಅದು ಓಕೆ ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ PSS ಒಬ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇಡಂದಾಗ। ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ PSS ಅವರು ಒಂದು ಮನವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೂ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡೀವಿ, ನಾವು ಯಾರೇ ಇಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸೇನೆ ಹೋರಾಟ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್। लोग जानते हैं गुलबर्गा में माइक्रो फाइनेंस बैंक के ज़रिए जो भी संघ के नाम पर ख़वातीनों को लोन दिया जा रहा था, उसके आड़ में किस तरह से ख़वातीनों के साथ जुल्म किया जा रहा था, मेंटली उनको हरासमेंट किया जा रहा था, तमाम शिकायतें जो हमको गुलबर्गा से मिल रही थी, उनको गाड़ियों पर बैठकर कहीं भी ले जाने की बात की जा रही थी, मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायतें हमें मिल रही थी। तो उस पर हम लोगों ने एक मीटिंग कर ऑल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक गुलबर्गा में प्रोटेस्ट कॉल किया था, जिसमें एक हिस्टोरिकल वो प्रोटेस्ट रहा, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से ख़वातीन वहाँ पर शिरकत करके अपनी नाराज़गियाँ जाहिर किए हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि सेडम है, अलंद है, यादगीर है, बीदर है, बीजापुर है, अमनाबाद है, मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह से लगातार सेम शिकायतें आ रही हैं जो गुलबर्गा में हमको देखने को मिली थी।
तो अब यहाँ पर आज सेड़ा में भी एहतजाज किया गया है और दीगर जगहों पर भी अपनी अपनी ख़वातीनों की मीटिंगें हो रही हैं। वहाँ पर वहाँ के अपने अपने सोशल वर्कर हैं या पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो ख़वातीनों को अवेयरनेस दिलाने का काम कर रहे हैं, किस तरह से संघ से बचा जा सके, संघ के ये फितने से ख़वातीनों को दूर किया जा सकता है। तो आज यहाँ पर सेड़ा मेन चौक से लेकर तहसील ऑफिस तक एक रैली निकाली गई एहतजाजी, जिसके अंदर ख़वातीनों ने शिरकत कर अपनी यहाँ पर नाराज़गियाँ जाहिर की हैं, जिसमें से आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स को यहाँ पर रिकवरी एजेंटों ने इतनी बुरी तरह से मारा है कि उसकी हथेली पर यहाँ पर टाके पड़े हैं और दीगर ख़वातीनों के साथ भी हरासमेंट किया जा रहा है। किसी को गाड़ी पर बैठकर हमारे साथ चलने के लिए वो लोग बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कई ख़वातीन ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके घरों के अंदर घुसकर उनके बेडों पर वो आकर बैठते हैं, जब तक पैसे नहीं देंगे हम जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों का जो मुतालिबा है यही है कि रिकवरी एजेंट को जिस तरह से हायर किया गया है माइक्रो फाइनेंस और बैंक की तरफ से, उन लोगों को हम लोग यहाँ से एक वार्निंग दे रहे हैं। जो भी फाइनेंस है और बैंक वाले हैं उनको ये हमारी चेतावनी है, ये वार्निंग है कि आप अपने रिकवरी एजेंट पर लगाम लगाएं। किस तरह से वो रिकवरी का पैसा रिकवर करने के इंस्टॉलमेंट रिकवर करने के नाम पर ख़वातीनों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, ये साथ ही साथ रिकवरी एजेंट के साथ माइक्रो फाइनेंस और बैंक के ऊपर भी हम लोग एफआईआर करने वाले हैं और ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी गुलबर्गा में कर चुके हैं। और आगे सेडम हो, यादगीर हो, अलंद हो, हुमनाबाद हो, बीदर हो, आप लोग ये समझ रहे होंगे ये सिर्फ गुलबर्गे के हद तक प्रोटेस्ट है, ऐसा नहीं है। चाहे बीजापुर हो, यादगीर हो, हुमनाबाद हो, रायचूर हो, जहाँ भी ख़वातीन परेशान होंगे वहाँ पर उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। ये कान खोल कर सुनने की ज़रूरत है। वहाँ पर एक्चुअली हो रहा क्या, रिकवरी एजेंट क्या बोल रहे हैं, बीदर में, यादगीर में, उधर से बीजापुर में, वो गुलबर्गे का था, गुलबर्गे वालों के लिए है, यहाँ तुमको देना पड़ेगा। भाई साहब, ये कानून सिर्फ गुलबर्गा के लिए बनाया गया नहीं है। चाहे आप किसी भी कोने में हो, अगर आप जुल्म करते हैं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग तमीज़ में रहिए, तहज़ीब में रहिए। ख़वातीनों के पास अगर आप जा रहे हैं तो आप पूछिए, अगर कोई पैसा नहीं दे रहा तो आप वहाँ से शराफत से निकल कर जाइए। अगर आप लोग उनके ऊपर अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो आपके ऊपर केस बुक होगा। और साथ ही साथ जो ग्रुप लीडर हैं, ग्रुप लीडर की भी कई शिकायतें आ रही हैं, उनके ऊपर भी गुलबर्गा में केस बुक किया गया है, एफआईआर बुक किया गया है। और आगे अगर कोई ग्रुप लीडर भी अगर जाकर गंदी गंदी गालियाँ देते हैं ख़वातीनों को, तो उनके ऊपर सेडम में भी केस किया जाएगा और दीगर जगहों पर भी केस किया जाएगा। और हमें आज ही खबर मिली है कि अलंद में भी एक एफआईआर बुक किया गया है। तो ये एफआईआर का बताने का मतलब ये है कि ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम पैसा दिए, हम किस तरह से भी वसूल कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको बता दूं, कानून हर किसी के लिए है। आप लोग पैसा दिए हैं तो आपके पास भी कानून है, आप लीगल कार्रवाई करिए, नोटिस भेजिए, कोर्ट को बुलाइए। हरदमी नहीं कर सकते, जुल्म नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती घरों में घुसकर बैठ नहीं सकते। तो इसके ऊपर, इसके खिलाफ हमारा यहाँ पर जो है एहतजाज हुआ है। और हम लोग यही मांग करते हैं कि जिस तरह से ये तमाम ख़वातीनों ने जो अपनी अपनी शिकायतें सुनाई, तहसील ऑफिस से जो मैडम आए थे उन्होंने भी ये तसल्ली दी है कि वो इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगी और एक्शन लेने का उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है। पुलिस ऑफिसर से भी हम लोगों ने बात की, बताया किस तरह से एक शख्स का हाथ कट गया है, उसके ऊपर भी जो है ना वो कार्रवाई करके एफआईआर बुक करेंगे। और दीगर इस वीडियो के ज़रिए हम ख़वातीनों से ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग कान खोलकर इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर पर आकर कोई हरासमेंट करता है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करिए, उसका वीडियो रिकॉर्ड करिए। अगर वो आपके साथ हरदमी करता है, उसका अगर आपके पास वीडियो रहेगा तो हमें आसानी होगी उसके खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए। और दूसरी चीज़, आप लोगों का ना आधार कार्ड बंद होगा, ना राशन कार्ड बंद होगा, ना आपके ऊपर कोई किसी तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बस इतना है कि आप लोगों को दूसरी बार संघ में बैठने से यहाँ पर परहेज़ करना है। दूसरी बार आपके जान पहचान में भी जितने ख़वातीन हैं उनसे आप ये कहिए कि संघ में बैठकर पैसा ना लें। छोटी सी परेशानी के लिए आप लोग संघ से पैसा लेके बड़ी मुसीबत में फंस रहे हैं, इस तरह के दलदल में फंस रहे हैं। आपको सड़कों पर जलील किया जा रहा है। आप लोग किराए के घर में हैं तो ये आकर गाली देते हैं, तो मकानदार आपको घर खाली करने के लिए वहाँ पर ज़बरदस्त। आदाब, नमस्ते। आज सेडम में एक बहुत ही ज़बरदस्त एहतजाज सूदी संघ के ख़िलाफ़ में किया गया, माइक्रो फाइनेंस जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। और ये माइक्रो फाइनेंस बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ प्राइवेट इदारे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ प्राइवेट इदारे दे रहे हैं, बल्कि ये बैंक्स भी दे रहे हैं। और कई सारे बड़े बड़े बैंक जैसे कि IDFC है, इंडसइंड है और कई सारे दूसरे बैंक हैं। ये सारे बैंक्स
हकीकत ये है कि ये लोग रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट करना नहीं चाहिए, कलेक्शन एजेंट्स को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। जब तक कि कोई पूरी तरीके से डिफ़ॉल्टर नहीं हो जाता है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसके ख़िलाफ़ में कोई लीगल नोटिस नहीं दी गई है, उस वक्त तक वो रिकवरी के लिए किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। अगर वो अपने बैंक एम्प्लॉयज़ को भी भेज रहे हैं तब भी वो गलत है। इसीलिए जो लोग कर्जा लिए हुए हैं, अगर कोई आपके पास आ रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, आपके घर में आ रहा है, तो आप उसको फौरी तौर पर वापस चले जाने के लिए बोलिए। और अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो आप उससे या तो मोहलत लेने की कोशिश करिए, टाइम लेने की कोशिश करिए। अगर टाइम नहीं दे रहे हैं वो और उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई धमकी दे रहे हैं, तो फौरी तौर पर उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास ले लें और पुलिस स्टेशन जाकर उसके ख़िलाफ़ में कंप्लेंट करें। अगर पुलिस आपको ये कहती है कि अम्मा अगर कर्जा लिए हुए हैं तो वापस करना पड़ेगा, ये एक जनरल परसेप्शन है सभी का, लेकिन कर्जा लेने के बाद में ये बात जो की जा रही है, जो रिकवरी एजेंट्स को भेजा जा रहा है, वो क़तई तौर पर एथिकल नहीं है। आरबीआई के गाइडलाइंस हैं इसके ताल्लुक़ से कि आप एक तो जब किसी के पास से कर्जा वो देते हैं तो उसको टाइम दिया जाता है, वो डिफ़ॉल्टर अगर हो जाता है तो उसको लीगल नोटिस दी जाती है, उसके बाद में किसी हालत में रिकवरी एजेंट्स को भेजा जा सकता है। वो भी उससे जो कर्जा लिया हुआ है उससे बात करके एक पर्टिकुलर लोकेशन जब तक कि वो नहीं देता है, ये घर पर जाने की हरकत करना ये भी गलत है। अगर वो कोई जो है मुकाम बताता है कि वहाँ पर आकर मेरे से बात करें, वहाँ पर जाकर उससे बात करना है, और उस वक्त वो रात का भी टाइम नहीं होना चाहिए। और जब औरतों की बात आ रही है तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी ये तरीक़ेकार है कि किसी को हिरासत में लेना रहा, कोई खातून कोई औरत को हिरासत में लेना रहा, तो उसके साथ में एक लेडी पुलिस ऑफिसर रहना ज़रूरी है। यहाँ पर रिकवरी एजेंट्स घर में आकर बैठ रहे हैं, उनके पास से रिकवरी करने के लिए औरतों को क्यों नहीं अपॉइंट किया जा रहा है, ताकि वो जो इज़्ज़त के ऊपर हमला होने की जो खदशा है वो दूर हो जाए। इसके साथ में आप सभी औरतों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एक सिस्टम आप लोग जब माइक्रो फाइनेंस को आप पैसे दे सकते हैं तो आपस में भी एक चिट फंड कायम कर सकते हैं, 1000 रुपये का, 500 रुपये का या फिर 2000 रुपये का, जो भी आपके पास ताकत है, आपस में चिट फंड कर लेकर जो ज़रूरतमंद है उसको जो है वो ज़रूरत के हिसाब से महीने में एक मरतबा या 15 दिन में एक मरतबा अगर पैसे दे देंगे तो आपको किसी माइक्रो फाइनेंस के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक निज़ाम बना दें, एक सिस्टम बना दें। अभी कुछ दिनों पहले वसीम साहब ही गुलबर्गा हेडलाइंस के एक वीडियो में मैं देखा हूं कि गुलबर्गा में एक बैतुल माल या फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इस तरीके से कायम करने की कोशिश होगी जिसमें औरतों को कर्ज दिया जा सके, ये बिना सूद के, बिना इंटरेस्ट के। ये दूसरे इदारे भी कर सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये काम कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये काम कर सकता है, बशर्ते वो उनकी नीयत साफ़ हो और रिकवरी करने के लिए किसी और को अपॉइंट करने की बजाय उन लोगों को सहूलत के साथ में वापस कर्जदार जो रहता है वापस कर्ज देने के लिए उसको सहूलत और मोहलत दी जाए। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा तमाम तर ये देखने वाले वीडियो के जो मालदार लोग हैं वो एक निज़ाम कायम करने की कोशिश करें, यही आपसे गुजारिश है। इसको दूर करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सिस्टम बनाया जाए इसको ख़त्म करने का। शुक्रिया। अस्सलाम जैन साथियों, मैं सिराज शाब्दी आज गुलबर्गा से तमाम एनजीओ टीम यहाँ पर आई है दलित सेना को कोलैबोरेशन में, जो आज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो संघों के खिलाफ प्रोटेस्ट कॉल फॉर किए थे यहाँ पर सेडम में, तो हम लोग यहाँ पर है दलित संगठन को सपोर्ट करने के लिए, इस मुहिम को कामयाब करने के लिए। देखिए ये जो मुहिम शुरू हुई थी गुलबर्गा से शुरू हुई थी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के ख़िलाफ़। अब ये यहाँ पे जितने भी औरतें हैं, महिला हैं, जिनको ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो लोन देकर इनको एक झांसे में अटका रहे हैं, इसका कई सारे हम लोगों के सामने एग्जांपल सेट हुए सो है। कई गुलबर्गा में कई औरतें सुसाइड कर लिया, ये तो रिकॉग्नाइज सुसाइड है, केस बुक हुआ सो सुसाइड है, ऐसे अनरिकॉग्नाइज कई सारे लोग सुसाइड करे सो है यहाँ पर, जो लोगों में मालूम भी नहीं हुआ, बस अड़ोस पड़ोस में मालूम हुआ। इसको देखते हुए मूवमेंट स्टार्ट करे कि भाई ये जो महिलाओं के वुमेन्स एंड डिग्निटी के हिफाजत करने के लिए ये प्रोटेस्ट के मूवमेंट स्टार्ट करें यहाँ पर, जिसका एक एजाज़ यहाँ पे भी हुआ सो है सेडम में। मैं दलित संगठन और यहाँ के तमाम आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया यहाँ पर। इससे क्या होता है, महिलाओं के अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ पैदा होती है और वो लोग अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं। देखिए कानून सीधा सीधा बताता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि आप जो रिकवरी करते हैं वो रिकवरी आपको जो टाइम मोहलत दी गई हुई है
कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक आप जाकर अप्रोच कर सकते हैं। ये ना करते हुए ये माइक्रो फाइनेंस के जो ऑफिसर्स हैं ये लोग इनके पास रातों में 10-11 बजे जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, धमका रहे हैं और घर में बैठकर है ना ये रिकवरी करते हैं। तो ये हुकूमत से भी सवाल उठता है, ये पुलिस प्रशासन से भी सवाल उठता है कि उनको घर में बैठने का ट्रेड लाइसेंस कौन दिए, ऑथोराइजेशन कौन दिए लोगों को घर में बैठने का। ग्रुप लीडर्स अपॉइंट करके ग्रुप लीडर के थ्रू ये लोग रिकवरी कराते हैं। ये कितना प्रोफेशनल तरीके से बना रहे हैं ये लोग, आपको ये समझना ज़रूरी है। ग्रुप लीडर को कौन ऑफिशियली अपॉइंट करा है यहाँ पर? जब कोई बैंक या कोई फाइनेंस रजिस्टर फाइनेंस रिकवरी ऑफिसर रखते हैं तो एक ऑथराइजेशन लेटर देते हैं कि ग्रुप लीडर के पास कोई ऑथराइजेशन लेटर है, जो किस बुनियाद पर ग्रुप लीडर उसको रिकवरी करे। देखिए ये आवाम को समझना ज़रूरी है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में जितने भी महिला बैठे हैं आप लोगों को भी ये जानना ज़रूरी है कि ये लोग रूल्स को वायलेट कर दिए, ये लोग रूल्स के खिलाफ चले गए। आपको हक़ है इनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल केस इनके ऊपर फाइल कर सकते हैं और ऑलरेडी गुलबर्गे में 7-8 FIR हो चुके हैं इनके ऊपर। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के ऊपर हो चुके हुए हैं, ग्रुप लीडर्स के ऊपर हो चुके हैं और रिकवरी जो सर्स आते हैं आप लोगों के पास उनके ऊपर भी वैसे है। तो आप लोगों को राइट से आप जाकर कर सकते हैं ये चीज़ के ऊपर। अगर कहीं भी आप लोगों को सेडम में यहाँ पे परेशानी नहीं तो दलित संगठन आप लोगों के साथ है, गुलबर्गा के तमाम NGO आपके साथ है और सेडम के तमाम आवाम जो एक महिला की हिफाजत करने की उम्मीद रखता है वो लोग आपके साथ हैं। हम सब मिलकर इंशाल्लाह महिलाओं की हिफाजत के ऊपर काम करेंगे। थैंक यू। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि राशन कार्ड को लेके, आधार कार्ड को लेके महिलाओं को डराया जाता है कि अगर आप संघ नहीं भर सकते तो आपका राशन कार्ड या आधार कार्ड ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे ताकि आपको लाइफ में कभी इस तरह भी ना मिले। देखिए डर से ही पैसा बनता है यहाँ पर। जितना मैं स्टडी करा माइक्रो फाइनेंस, डर से ये लोग पैसा बना रहे हैं। इसके अंदर आप ये नहीं देंगे तो हम ये ब्लॉक करते हैं, आप ये नहीं देंगे तो आपके बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, आप अगर नहीं भरेंगे तो आपको गारंटी कार्ड के पैसे नहीं मिलते हैं। देखिए ये ऑथराइजेशन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को कोई नहीं दिए सो ये ऑथराइजेशन। अगर किसी को ये बात का अगर सोच भी है कि ऐसा हो सकता तो 1947 ये आधार सेंटर नंबर है, आप 1947 पे कॉल करके पूछ सकते हैं आप कि क्या ऐसा माइक्रो फाइनेंस को राइट्स दिया आप लोग के हमारे आधार कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग कन्फर्मेशन लिए सो है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इसको ब्लॉक करे जैसा। और राशन कार्ड है, फूड डिपार्टमेंट जाकर आप पूछ सकते हैं आप लोग। मसला ये है हम जाके पूछते नहीं, हम लोग इन्हों बोले हम कबूल लेते कि हाँ इन्हों बोल रहे तो हो सकता बोल के, तो ऐसा नहीं है। कोई आधार कार्ड, कोई राशन कार्ड, कोई वोटर कार्ड, कोई गारंटी कार्ड को इनको ब्लॉक करने की ऑथराइजेशन नहीं है। ये डर से आप लोग निकल लीजिए और ये याद रखिए आपके डर से ये लोग पैसा बना रहे हैं। आपको ये डर से निकलना है। अगर आपको कोई ये संघ से बचा सकता है तो वो आप ही है। हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, मगर संघ से कोई बचा सकता तो आप ही बचा सकते हैं। यू हैव टू फाइट योर ओन फाइट एंड हम लोग यहाँ पर है लीगल कार्रवाई और लीगल असिस्टेंट देने के लिए। गुलबर्गा से शुरू हो गया ये संघ का, आज सेडम तक पहुँच गया, तो हर कर्नाटक के हर कोने कोने में प्रोटेस्ट चलेगा, आवाज़ उठेगी संघ के खिलाफ। सी वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स, ठीक है। रामनगर डिस्ट्रिक्ट से कॉल आया, चिंचोली से कॉल आया, हमारे को अलन में कल प्रोटेस्ट हो गया, अब यहाँ पे सेडम में एक मूवमेंट हो गया। सो रायचूर से आया, बीदर से आया, बसो कल्याण से आया, हुमनाबाद से आया, ऐसे तकरीबन जगह से आ रहा। जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ जा रही वहाँ से लोग कॉल कर रहे हैं और डिस्कस हो रहा है इसके ऊपर। और मोस्टली ये आवाज़ उठेंगी और पूरे कर्नाटक में उठेंगे आने वाले वक्त में, और इंशाल्लाह कर्नाटक से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट खत्म हो जाएगा। सर ये शुरू तो हुआ, खत्म कहाँ पर होगा? जी शुरू तो हो गया, खत्म कहाँ पर होगा? देखिए ये एक चीज़ से हमारे को समझना है कि महिलाओं को ये जो माइक्रो फाइनेंस में बैठ रहे हैं ना, एक मजबूरी से बैठ रहे हैं। मजबूरी शादी को लेकर है, हेल्थ इशू को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है, हर चीज़ को लेकर है। मगर ये मजबूरी क्यों है? ये क्या गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है, यहाँ की हुकूमत है, इनको हम लोग जिताकर इसलिए लाए कि ये जो शादी भाग्य स्कीम, ऐसे स्कीम्स लेकर आना जिससे एक औरत को अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक परेशानी ना हो, हेल्थ सेक्टर भी इम्प्रूव करना, गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर भी इम्प्रूव करना। मजबूरन गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव नहीं होने की वजह से हमको प्राइवेट इंस्टीट्यूट जाना पड़ा, उसके लिए हमको कर्ज लेना पड़ा। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे फीस ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छी क्वालिटी और रिकॉग्नाइज कराने के लिए इस पर काम करना, कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का हाथ है। गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी महीने को 20,000 रुपये एक आम इंसान के बच रहे हैं। हेल्थ सेक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दे रहा हूँ, पानी की फैसिलिटी दे रहा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का माफ़ करा, ये देने से हर एक शख्स को 20,000 रुपये बच रहे। अगर वो 20,000 यहाँ पे बचते तो कोई महिला संघ में नहीं बैठती थी यहाँ पर। तो यहाँ की गवर्नमेंट फेलियर है, यहाँ के प्रशासन फेलियर है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी जाती है और वो लोग ख़त्म करना है इसको। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।